میرے پولیٹیکل ورکر ہمارے ہمدرد وہ کون سی پارٹی جوائن کرتے ہیں؟ پیپلز پارٹی جوائن کرتے ہیں، مسلم لیگ نون جوائن کرتے ہیں، تحریک انصاف میں جاتے ہیں، جمعیت علماء اسلام میں جاتے ہیں، یا کوئی ملیٹنسی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو پھر اس کا الزام ہم پہ نہ لگائیں۔ یہ ان کے سامنے میں نے یہ بات واضح طور پر کہی، کہتے ہیں نہیں جی صاحب آپ سیاست کریں نا، میں نے سیاست آپ چھوڑتے نہیں ہیں، اگر سیاست نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا اس سیاست سے بہتر ہے کہ میں کوئی پکوڑے کی دکان کھولوں۔ تو آج وقت آ گیا ہے۔ ہمارے بڑے اور بزرگ ہمیشہ میں کہتے تھے کہ وقت میں مفت میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کی بات نہیں مانی، نافرمانی کی۔ وہ ہمیں کہتے تھے کہ ان پر بھروسہ مت کرو، یہ اقتدار کے بعد وہ طوطا چشم بن جاتے ہیں جو راہ گزرتے ہوئے آپ کو نہیں پہچان پائیں گے۔ اور آج عجیب اتفاق ہے، جس شخص نے مجھے یہ کہا اور ان کی باتیں میں نے نہیں مانی، آج سے 3 سال پہلے 2 سپٹمبر کو 2021 کو میرے والد محترم انتقال کر گئے تھے۔ کل ان کی برسی تھی، میں ان کی برسی پر نہیں جا سکا۔ یہ سوچ کے کہ میں یہاں پہ آ کے ان کو کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا، لیکن اور آج 3 سپٹمبر ان کی تدفین کا دن تھا۔ تو آج میں اپنی سیاست کو اب اس ریاست کے کسی ادارے پر میرا بھروسہ نہیں رہا۔ ممبر نیشنل اسمبلی، اس اسمبلی میں جہاں پر وہ اسمبلی جو ہماری بچیوں کی چیخ و پکار نہ سن سکے، وہ اسمبلی جو میری بچیوں پر لاٹھی چارج جو گولیاں برسائی جاتی ہیں وہ ان کو نہ روک سکے، تو اس اسمبلی میں بیٹھنا میرے لیے بہت مشکل ہوگا۔ تو آج ہی میں اسمبلی سے اپنے استعفے کا اعلان کرتا ہوں۔ اس سے میرے وہ کارکن، حالانکہ میں نے اپنی پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا، یہ خان صاحب بیٹھے ہوئے ان کے لیے بھی ابھی سرپرائز ہے، میں نے اپنی فیملی کے لوگوں کو بھی نہیں بتایا، میں نے اپنی پارٹی کی جو میں پارٹی کا صدر ہوں میں نے ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا، جہاں سے 65,000 ووٹ مجھے ملے ہیں، میرے اس فیصلے سے ان کی دل آزاری ضرور ہوئی ہوگی، وہ دل برداشتہ ضرور ہوئے ہوں گے، بالخصوص بلوچستان کے لوگ، ان سے میں معذرت چاہوں گا کہ وہ جو آپ نے مجھ پر بھروسہ یقین کیا تھا وہ حق شاید میں ادا نہ کر سکا۔ وہ اس لیے اس شہر کے ساتھ کیا پوچھتے ہو حال میرے کاروبار کا، آئینے بیچتا ہوں میں ان اندوں کے شہر میں۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی۔ امید تھے لیکن مایوسی ہوتی ہے فیڈریشن پر یقین کرنے والوں سے، اور اس وقت جس وقت دعوے کیے جاتے ہیں آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں، شاید میڈیا لگا ہے آپ کو براہ راست دکھایا نہیں جا رہا، بلوچستان کے ایشوز پر بھی آپ بات کرتے ہیں، ایسے میں جس وقت آپ کے بڑوں کو ساتھی جو تھے اس پرانے، ریاست نے سر پر قرآن اٹھا کر ان کے ساتھ بات کی اور اعتماد نہیں رہا ان معاملات پر، تو اب واپسی کا راستہ پھر کیسے ہوگا، کس طرح؟ دیکھیں، اب میں نے پہلے کہا جی، اعتماد ایک وقت کبھی کبھی ایک معمولی سے ہاتھ کے اشارے سے اعتماد ٹوٹ جاتا ہے، پتہ نہیں یہ ہماری برداشت ہے، ہماری کمزوریاں کہ 75 سال تک ہم اعتماد کرتے رہے، اور اس اعتماد کے نتیجے میں مطلب جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ قرآن شریف کا واسطہ دے کر، آئین کا واسطہ دے کر ان کو جو پہاڑوں سے اتارا گیا، ان کو پھانسی دی گئی، مذاکرات کے نام پر ایک طرف ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے ان کو ان پر ایریل بمباری کر کے نواب اکبر بگٹی کو شہید کیا جائے، اور پھر ہماری زبانوں پر تو تالے لگائے دیے جاتے ہیں، میڈیا پہ تالے لگائے دیے جاتے ہیں، لیکن
मुसलमानों की तारीख में पहली दफ़ा देखा होगा कि किसी के कफन पे ताले लगाए जाए। लेकिन हमने तो कोशिश की भाई, हम मायूस हो चुके हैं। अब अगर बात करनी है इनको, कुर्सी वाले पहाड़ वालों से जाके बात करें। सरदार साहब ये बताएं कि आपने कई बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पाकिस्तान को फतह किया, ये किया। इस वक्त सदर तो आसिफ अली जरदारी है, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है, वो कौन सा मुल्क फतह करना चाहते हैं? ये कौन है? सदर और वज़ीर आज़म तो कौन है? और आपसे सर मेरे ये है जो अभी उन्होंने अपना मुकदमा बिल्कुल आखिरी मकाम पे पहुंचा दिया अपना मुकदमा, इस मुकदमे को आप बेंगल साहब के और बलूचिस्तान के मुकदमे को सर कहाँ लड़ेंगे? महमूद खान टिकरी साहब, देखिए वो जो जंग लड़ रहे हैं ना, वो बड़ी एक मुश्किल जंग है, और हर इंसान जो है ना वो जंग अपनी बसात के मुताबिक लड़ता है। वो है पेट की जंग। वो पाकिस्तान की जंग नहीं लड़ रहे, वो अपना सरमाए को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। वो अपने आने वाले नस्ल के लिए जो उन्होंने सरमाया कमाया हुआ है उसकी जंग लड़ रहे हैं। वो अपने पेट की जंग लड़ रहे हैं। तो आप सदर वज़ीर आज़म पर भी अदम एतमाद कर रहे हैं? मैं पूरे निज़ाम पर, इस रियासत पर, रियासत में सबको याद है। सरदार साहब, आप फिर अपनी आइंदा में क्या सियासी अमली होगी? आप सियासत से भाई रहे, अगर और आप मायूस हो कि क्या अगला क्या सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे, हथियार उठाएंगे, क्या करेंगे? और दूसरा, ऐवान सदर में एक बलोच बैठा हुआ है और बलूचिस्तान जल रहा है, तो उसके बारे में क्या करें? और इससे बात एक और ऐड कर लीजिएगा, दूसरे सियासतदानों को जो असेंबली में बैठे हैं उनको आज आप क्या पैगाम देंगे? देखें भाई, मैंने कहा कि मैंने नेशनल असेंबली से इस्तीफ़ा दिया, जाके अपने इलाके में बैठेंगे, कोई खेती बाड़ी करेंगे, अगर किसी शहर में हुए तो कोई पकौड़े की दुकान खोल देंगे। आप लोग आए या कोई हमारे पार्लियामेंटेरियन आए, उनको तो तीखी मिर्ची के पकौड़े खिलाएंगे हम, अपनी दुकान से कोई नहीं खरीदेगा। और अगर रहने दिया गया हमें, या नवाब बुगटी की तरह आके उन्होंने वहाँ पे भी हमें नहीं बख्शा, ताकतवर जोरावर लोग हैं। अगर आपको बनाने की कोशिश की जाती है की तरफ से, वज़ीर आज़म की जानिब से कोई वक्त भेजा जाता है, नारेसानी करेंगे? देखिए, मुझे न मनाएं उनको जो जिनको वो नाराज कहते हुए भी उनको डर लगता है। पहले नाराज कहते थे, आजकल उनको नाराज नहीं कहते, उनको। और मैं जो फैसला करता हूँ वो सोच के फैसला करता हूँ, फैसला करके फिर मैं नहीं सोचता, ये मेरी बदबख्ती है। मेंगल साहब सोच कर फैसला करते हैं, फिर इतनी सीनियर सियासतदान है, आप कहते हैं ना BA ना DA ना कोई और पास पड़े, हम हमेशा इस्तेमाल हुए, तो इतनी सीनियर सियासतदान होकर बार बार इस्तेमाल क्यों होते हैं? हुए, मैंने कहा हमने गलतियां की, हमने बड़ों की बातें नहीं मानी, उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। अच्छा सर, सबसे ज्यादा जिम्मेदार आप किसको करार देते हैं? आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, हर दौर में हम आपको देखते रहे, आप सबसे अहम इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर डालते हैं आज जो आप दिल बर्दाश्ता होकर रिजाइन कर रहे हैं? देखिए, मैं हकीकतन मैं तकरीबन 5 महीने से बाहर था मुल्क से, बलूचिस्तान के हालात देखे मैं ये डिसाइड करके आया था। ये नहीं कि आज के असेंबली के इजलास में उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, मैं इसलिए इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, मैं डिसाइड करके आया था वहीं से, और कल वापस जा रहा हूँ अगर जाने दिया गया कि यही अपना फैसला इनको सुना के मैं जाऊँगा। और दिल बर्दाश्त है यार, इंसान है हम, इन हालात के बावजूद भी हम दिल बर्दाश्त ना हो। असेंबलियों में बैठने का फ़ायदा क्या है? वो मुझे मनाने आप क्या आएंगे, उनको पता है हमारे बलूचिस्तान में किसी भी सड़क पर आपको यू टर्न नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा मूव है कि आपने नेशनल असेंबली से इस्तीफा दिया है। बड़े कम लोग, मैं तो मुझे तो याद भी नहीं किसी ने ऐसे इस्तीफा दिया हो। कुछ मुतालबात है आपके जो आप रखेंगे मौजूदा गवर्नमेंट के सामने, तो उनको क्या करना चाहिए ताकि सिचुएशन बलूचिस्तान में आप अच्छी तरीके से जानते हैं उसको कंट्रोल में ली जाए? इसका जवाब मैं दूंगा, आप इसका जवाब मैं दूंगा, सारा जवाब। हमें हक की हुक्मरानी में अपना हक चाहिए। ये हक की हुक्मरानी कौन देगा सर आपको? ये पार्लियामेंट देगी, ये आइन हमें देता है, ये आइन हमें देता है
न बलोच, न पश्तून, न कोई सिंधी, न आज से कोई खैरात मांगना नहीं मांगता। 1947 में आपने पाकिस्तान बनाया है, हक की हुक्मरानी अंग्रेज़ की तरफ से ट्रांसफ़र हुआ है। 75 साल से आपने हमें इस हक की हुक्मरानी में हिस्सा नहीं दिया। अगर इस मुल्क के रहने वाले हम हैं, यकीनन हम हैं, तो पाकिस्तान के हर इदारे में हमारी आबादी के तनासुब से हमें हिस्सा मिलना चाहिए था। अब सारी अफवाज देखें, सराइकी, सिंधी, बलोच, दूरबीन में भी आपको नहीं मिलेगा। 75 साल में हम फिर भी शरीफ लोग हैं। 4 ज़िलों की फ़ौज को हम पाकिस्तान की फ़ौज समझते हैं, जो नहीं है पाकिस्तान की। उस लिहाज से पाकिस्तान की नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव फ़ौज नहीं है हर इदारे में। दूसरी बात, जो खुदा पाक ने हमारे वतनों में सिंध के वसाइल, सिंध के वसाइल, बलूच वसाइल बलूच, पश्तून वसाइल पश्तून वसाइल, इन वसाइल पे हमें आइनी तौर पे हमारा हक तस्लीम कर दे। ये सारा टेम्परेचर नीचे आ जाएगा, ये सारा टेम्परेचर। खान साहब ये बता दे रहे कि आप इस वक्त अख्तियार किया तमाम बड़ी जमातों ने, ये मुकदमा पेश करेंगे जो अख्तर महंगल साहब, ये तो बाबा हम 70 साल से पेश कर रहे हैं। नहीं, जहाँ से मुज़ाकरात आप करेंगे? मुज़ाकरात इसी बात पे, हम जब आइन की बात करते हैं, आइन अच्छा है बुरा है, इकट्ठा एक कागज़ है, उसको आप एक कागज़ का टुकड़ा समझते हैं, हम उसे एक इमरानी मुआहिदा समझते हैं। कितना बड़ा फ़र्क है। हम उसे एक इमरानी मुआहिदा समझते हैं अवाम, अक़वाम और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान। आप उसे कोई जनरल उठा के फेंक देता है, बल्कि जनरल ऑन रिकॉर्ड ज़ियाउल्लाह कहता था क्या आइन क्या है, 4 कागज़ के टुकड़े जिनमें कोई भी वो कर सकता हो। हमें ये गारंटी चाहिए पाकिस्तान के हर फर्द को। हर परसों एक सवाल था कि पाकिस्तान के गुर्बत से नीचे लकीर में कितने लोग रहते हैं, 4 करोड़ से ऊपर। इन हालात में कैसे होगा? आप एक वोट 70 करोड़ का खरीदते हैं, एक वोट सेनेट के इलेक्शन में 60 करोड़ में, 50 करोड़ में, 40 करोड़ में। 50 करोड़ में बलूचिस्तान के 4 अजला 3 महीने का ना खा सकते हैं, 5 अजला 3 महीने का ना खा सकते हैं। आपके पास जब वोट खरीदने की बात होती है अरबों रुपए है, और जब लोगों की रोटी मानी की बात होती है, और ये जो आप शाम को विलायती लस्सी चढ़ाते हैं उसकी एक बोतल 1 लाख रुपए में। मुनीज़ा, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, ये पहली दफ़ा नहीं है इस्तीफ़ा दिया गया है। 2006 में जब नवाब अकबर बुगटी खान को शहीद कर दिया गया था, उस वक्त भी हमने नेशनल असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट से इस्तीफ़ा दिया। वो पार्टी की डिसीजन थी, क्योंकि ये मेरी ज़ाती डिसीजन है, तो इसलिए आप लोगों के सामने क्या गारंटी चाहिए कि आप इस्तीफा वापस? मैं गारंटी, किसकी गारंटी भाई? खुदावंद ताला, ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना हुआ है ना, और अल्लाह की किताब पर हमें गारंटी दी गई है। उससे बड़ी किताब आप लोग लाएं, मैं आप सबके साथ बैठने के लिए तैयार हूं। थैंक यू।